Hello, Mayur sir. Yes, sir. Hello. Am I Yes, sir. audible? हा. Yes. माझा वॅक्सिनेशन नंबर लांब केला नेमकं 10च्या स्लॉट मध्ये आहे तर मी जरा बिझी असेल Okay, ठीक sir. आहे सर असतील ते इनॉग्रेशन करून घ्या ठीक आहे Okay. Okay. किती वेळ अजून इनॉग्रेशन 6 लोक दिसतात अजून सर 10 वाजता चालू होईल अजून आता येत आहेत आता एक लेक्चर चालू होतं ना फर्स्ट इयर हा 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 आणि बाकीच्यांचं पण मग ते आता जॉईन होतील सर लगेच आता तर मी म्हटलं 15 मिनिटात मी झालो फ्री तर मी कारण 10चाच नंबर आहे माझा पहिला दुसरा नंबरचा आहे बरं तर म्हटलं बरं मी तेव्हा जॉईन करेल मग 10:15 वाजता ठीक आहे चालेल चालेल सर काही issue नाही, काही
Good morning to all the participants for joining today's Yoga Day celebration. So we will be starting our program in a short time, within 2 minutes, without wasting time. A very good morning to all of you. A great morning of today's special International Yoga Day. A warm welcome to all the participants, dignitaries, attendees, students, and respected faculty members. Recently, our Prime Minister Modi ji said, if there are threats to humanity, yoga often gives a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I am sure yoga will continue playing its preventive as well as promotive role in healthcare of masses. So, with this great message from our PM Modi ji, we are all here gathered in our online platform to celebrate today's International Yoga Day, which is the 7th International Yoga Day celebration started from our great country India on 21st of June 2021. As it is said in Hindi, योग धर्म नहीं विज्ञान है. योग धर्म नहीं विज्ञान है. इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है. So, a very good morning to all of you. Respected campus director sir and our principal SIT Lonavala Dr. MS Gaikwad sir. Respected Vice Principal Sir, Dr. D.D. Chaudhary Sir, Career Counseling Center Head Professor Mayur Raut Sir, all the dignitaries, Head of the departments, HOD of Library SIT Lonavala Dr. Praveen Pandit Sir, and all respected faculty members, attendees, and students. A very warm welcome to you all. We will start with the inaugural function of today's program with Saraswati Vandana. Om Yakudendu Tusharhar Dhavana Yashubhra Stravruta Dandamandit Kara Ya Shweta Padmasana Ya Brahmanjat Shankara Prabhutavati Nishesh Jarapaha. Oh, with the great Saraswati Vandana, I just welcome our campus director and principal sir, MS Gaikwad sir,
Vice Principal Sir, Dr. Didi Chaudhary Sir, Head of Career Counseling Center, STES Campus Lonavala, Professor Mayur S. Raut Sir. Sir, I request you to accept our virtual bouquets as a token of respect and love from complete STS family. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And now I hand over the session to you for your motivating speech. Over to you, Mayur Raut, sir. Thank you, madam. Respected Dr. M.S. Gaikwad, sir, Campus Director, STES Lonavala, Dr. Didi Chaudhary, sir, Vice Principal, SIT Lonavala, Dr. Pandit, sir, Librarian Head, today's Coordinator, Yogini, madam, today's chief guest, or you can say expert, Madhuri Devre, madam, and Sahibra Raut, sir, HODs, faculties, students, and participants. I welcome you all for today's Yoga Day celebration. As it is celebrated on 21st of June every year, we can say that it has been started 6 years back, the Yoga Day celebration, or you can say International Yoga Day celebration. Initially, whenever you see, yoga was not that much developed as compared to today. The first initiative was taken, you can say, by our Prime Minister, PM Modi sir, on you can say year 2014, because at that time in 2014 there was no International Yoga Day celebration as such which was considered. But when you see now in 2014, United Nations one conference was being held. In that Prime Minister Modi was speaking, and he declared to, or he requested United Nations to organize, or you can say celebrate 21 June as a Yoga Day, or you can say International Yoga Day. The main motive behind, you can say 21 of June, why 21 June only has to be taken as the International Yoga Day? Because the main motive was that 21 June is the longest day in the Northern Hemisphere and shortest day in the Southern Hemisphere. So we can say Dakshinayan can be occurring, means what the sun will be going from Northern Hemisphere to the Southern Hemisphere. So we can say that the longest day is there in our country, as well as all the Asian countries, or you can say northern countries, we are having the highest number of hours, or you can say daylight. So accordingly, Yoga Day was being considered on 21st of June. So that was the proposal given by Mr. Narendra Modi on 21 June. And you can say on 2014 and 2015 it was been accepted by United Nations, and from since 2015 21 June is being celebrated as International Yoga Day. And now also basic thing regarding yoga is to have physical, mental, and spiritual practices, because in this COVID-19 situation, we need to be very physically strong, as well as mentally strong, as well as spiritually also strong, in order to have an overall development of our personality. So considering all these things in the mind, we need to start our today's program. So I would like to thank the organizers of this today's program, and especially the expert who will be delivering the demonstration of the yogas. And it has some of the protocols from the, you can say, the nation, that already the government has given the guidelines how the yoga has to be celebrated, or what all the asanas has to be done on 21st of June. So that will be performed by Ms. Madhuri Devre, madam, today's expert. And some of the difficult, we can say, yoga sessions will be performed by Sahibra Raut sir after the sessions. So do it at your end so that it will be useful for all of us. So with these words, I thank for joining all the participants. And now it is over to you, ma'am. Thank you so much, Professor Mayur Raut sir, for your motivating words. And definitely your words have given us a lot of knowledge and also a spirit to be fit, fine, and healthy with today's program, and continuing with today's guest of honor,
that is Mrs. Madhuri Devre. She is a yoga expert from Yoga Gurukul and a Kendriya Vidyalaya teacher in Nasik. So I welcome you, Madhuri Devre ma'am, with and request you to accept our bouquets from STS family as a part of respect and love. So please accept our bouquets, madam. Thank you, madam. Now I hand over the complete session to you. Devre ma'am, may I know you are there? Yes. Hari Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Hari Om to all of you. आज आप सबका 7th इंटरनेशनल योगा डे में सबका स्वागत है। शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा योगा के बारे में अभी मयूर सर ने तो बहुत ही अच्छे से बहुत आपको बताया ही है, लेकिन और थोड़ा सा उसमें मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ, फिर हम योगा का सेशन शुरू करेंगे। यह योगा की दिव्य पताका भारत देश में लाएंगे, पूरी दुनिया में हम फैलाएंगे, योग सीखेंगे और सिखाएंगे, योग सीखेंगे और सिखाएंगे। ये दो शब्दों के साथ मैं आज योगा की शुरुआत करने चाहती हूँ। सिंहगढ़ कॉलेज के सारे मान्यवर और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये प्रोग्राम, उनको सबको मेरा धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम। इसका मतलब है कि हमें कार्य करने के लिए हमारा शरीर ये एक माध्यम होता है, और हमारे शरीर का हम अच्छे से केयर नहीं करेंगे, उसको अच्छे से नहीं सुदृढ़ बनाएंगे, तो हम कोई भी कार्य करने के लायक नहीं रहते, हम रोगी बन जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें बीमारी हो जाती है। हमें उस हमारे शरीर को सुदृढ़ अच्छा रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और आप सबको मालूम है क्यों हमारा कर्तव्य है, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। हमारा मन तभी शांत रहता है जब हमारी बॉडी शांत रहती है, जब हमारी बॉडी सुदृढ़ रहती है, शरीर हमारा सुदृढ़ रहता है। तो इसीलिए शरीर हमारा सुदृढ़ रहने के बाद ही हमारा मन शांत रहता है और हमारी कार्य क्षमता फिर बढ़ती है। फिर ये हमारा मन शांत रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी आपको सबको पता ही, हम 1.5 साल से झेल रहे हैं कोरोना की वजह से, हम सब एक घर में बंद है। सोचो कितना स्ट्रेस हमारे दिमाग में आता होगा, कितना हमें बाहर घूमने की आदत थी लेकिन अभी बाहर नहीं जा सकते। कारण क्या है? बीमारी। और ये सब बीमारी हमारी वजह से ही आई है। आप सबको पता है, सोशल मीडिया से आप सबको सब जानते, सारे पोस्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे समय में हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए हमारे शरीर के लिए, मन शांत रखने के लिए। तो उसका एक ही उपाय है और वो है हमारा शरीर और मन अच्छा रहने के लिए हमें योगा करना है। ऐसा बोलते हैं जहां होता है योगा वही रहता है हमारा आरोग्य। जहां योगा है वहां आरोग्य है, कभी भी वहां रोगी आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए योग मतलब क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। योग मतलब ये एक शब्द है, संस्कृत शब्द है, उससे ये योगा शब्द हमारे पास आया है। इसका अर्थ होता है युज, मतलब हमारा शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का जोड़ने वाला एक जो शब्द है, जिनको जोड़ता है, वो है योग। योग करने से हमारा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों शांत रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शरीर अच्छा होता है तो मन अच्छा है, मन अच्छा होता है तो आत्मा अच्छा होता है, और साथ में हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में नहीं आते। साथ साथ में हमारे साइकोसोमैटिक जो बीमारी आजकल बहुत हमें दिखाई दे रही है,
ये हमारी बंद हो जाती है, ये दिमाग में आती ही नहीं है जब आप योगा करते हो। योगा ये हमारी 5000 साल पहले हमारे भारत देश ने, यहाँ पे हमारे पुरखों ने लाई हुई है। आपको पता है योगा के पतंजलि नाम के मुनि थे, उन्होंने 5000 साल पहले सब सूत्र में लिखा हुआ है, और इनको 5000 साल पहले उनको कहां से दिमाग में आया होगा आप सोचिए, और वो सब उन्होंने सूत्र में लिखा है, आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ये हमारी संस्कृति है। भारत देश ने पूरे जग को, पूरे देशों को ये संस्कृति दी हुई है। और जैसे मयूर सर ने अभी बोला, 21 जून 2015 से हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने आग्रह किया था कि ये योगा डे सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है, बड़े हमें लाइफ मिलती है, और ऐसे ही बड़ी लाइफ मिलने के लिए हमें योगा करना जरूरी है। तब से लेके 2015 से 21 जून 2015 से ये योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर योगा डे सेलिब्रेशन करने का एक थीम होता है हर साल का। इस साल का हम थीम देखेंगे, योगा करने के साथ योगी बनो और घर में रहो। योगा करने के साथ योगी बनो और घर में रहो, इस साल का ये थीम है। और योगा करने के साथ घर में रहो, शांत रहो, ये इस साल का थीम है। तो हम वो थीम के लिए आज हम प्रोटोकॉल, जैसे पूरे इंडिया में, एक पूरे वर्ल्ड में एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ आसन करने होते हैं। ये आसन सिंपल होते हैं, कोई भी इसको कर सकते हैं। तंदुरुस्त होना इसके लिए जरूरी नहीं है, कोई भी नॉर्मल आदमी इसको कर सकता है। योगा के और बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता है। पूरा ऑल राउंड फिटनेस हमारे शरीर में आता है। उसके बाद हमारे पूरे शरीर के तान तनाव जो है वो पूरे निकल जाते हैं, हमारा मन मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और साथ साथ में हमारे नाते, मतलब हमारे रिलेशनशिप जो है, माँ बहन पत्नी लड़का लड़की, इनके अंदर जो एक दूसरे के अंदर जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, उन रिलेशंस में बढ़ोतरी होती है। तो यही तो आजकल घर में रह के बहुत जगह पे हमने सुना है, पेपर में भी हम पढ़ते हैं, रिलेशन खराब हो रहे। क्यों खराब हो रहे? घर में बैठ के आप कुछ नहीं, 4x6 की एक मैट डाल के आप योगा कर सकते, करो, आप फिट रहो, मेंटली फिट रहेंगे तो एक दूसरे के साथ हम झगड़ा भी नहीं करते। बहुत बड़ी बात है, हमारे अंदर की शक्ति, ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, हम रोग मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में आने वाली जो छोटी छोटी बीमारियां, उससे हम बिल्कुल टाल सकते, वो हमें छू तक नहीं सकती है। ये इतना बड़ा योगा का असर है। ज्यादा अभी कुछ न बोलते हुए, आप सब तो वाकिफ है, वो सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से आप पढ़ते होंगे। सबसे लास्ट में एक बताना चाहती हूँ, कोरोना काल में सबको कोरोना से बचाने के लिए कोई ठोस दवाई नहीं थी, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक ठोस दवाई आई। क्या आई? वैक्सीन ले लो, कोरोना से बचो। सोचो वैक्सीन क्या काम करता है? वैक्सीन अंदर जाने के बाद जो कोरोना के विषाणु है उनको हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हैं, राइट? योगा भी हमें हमारे हर रोज करने से अंदर की शक्ति को बढ़ाता है और हमें सुदृढ़ रखता है, फिट रखता है। तो इतना ही बोलते हुए आज हम योगा के लिए तैयार रहने वाले हैं। योगा करेंगे अभी हम, जैसे प्रोटोकॉल दिया है उसके हिसाब से हम करेंगे, उसके लिए तैयार होना है। सबसे पहले दोनों पैर थोड़े हिला के रिलैक्स हो जाइए। अभी हम कोई भी एक आसन में बैठने वाले हैं, आप जिनको जो आसन पॉसिबल है उसमें बैठेंगे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, सहजासन, सादी मांडे भी डाल के, आप पालथी मांडे डाल के बैठ सकते हैं। उसके बाद आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। दोनों हाथ
अग्नि तत्व और वायु तत्व मतलब हमारा अंगूठा और इंडेक्स फिंगर दोनों को गोला बना दीजिए, बाकी तीनों हाथ एक दूसरे को जोड़ के ऐसी ध्यान मुद्रा हमारे दोनों घुटने पे रख दीजिए। हमारी पीठ सीधी, गर्दन सीधी कर दीजिए। अभी हम प्रार्थना बोलने जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए तैयार होने वाले हैं। आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। हमारा फोरहेड का जो मिडिल पार्ट है वहां पे पूरा ध्यान लगा के रखिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। हमारा शरीर शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। एक प्रसन्नता के साथ, हंसी के साथ आज की शुरुआत हम करेंगे। सहजता से, सजगता से हम योगा करने वाले हैं। बिल्कुल हलचल नहीं करनी है। मेरे पीछे आप आज की प्रार्थना बोलेंगे। ओम संगच्छदवम संवर्धदं संवो अंसानि ज्ञानताम् देवा भागं सयापुरे सज्जनाना उपासते। धीरे से दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा छोड़नी है। आंखें धीरे से खोलनी है। दोनों हाथ कमर के पास रख देने हैं। हमारा राइट लेग सीधा कर लीजिए, लेफ्ट लेग सीधा कर लीजिए। थोड़ा सा दोनों पैर रिलैक्स कर लीजिए। इसका मतलब आपको बता देती हूँ, इस प्रार्थना का मतलब है हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। हमको एक दूसरे के साथ प्यार बांटना है और हमारे जो हमसे बड़े हैं उनका हमें सम्मान करना है। यदि हम ऐसा जीते हैं तो हमारे जिंदगी में खुशी और आनंद ही आनंद रहेगा। इसका मतलब ये है। चलो हम प्रोटोकॉल के अनुसार अभी हम आसन शुरू करेंगे। लेफ्ट लेग पास में लीजिए, राइट लेग पास में लीजिए। दंडास्ता मतलब सीधे खड़े होना है सबको। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर। लेफ्ट लेग उठा के साइड में रख देना है। सबसे पहले हम नेक एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, उसके लिए तैयार होना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। आराम से हमें ये करने हैं, बहुत फास्ट नहीं करेंगे एक्शंस, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले करेंगे हम नेक एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। उसके लिए दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दीजिए। धीरे से हमारी नेक आगे झुकाते हुए पूरी तरह से आगे करनी है, धीरे धीरे। अब हमारी गर्दन सीधी कर दीजिए, गर्दन पीछे कर दीजिए। धीरे धीरे गर्दन सीधी कर दीजिए। गर्दन को भी लेफ्ट साइड में लेके जाना है, धीरे धीरे। बॉडी का दूसरा पार्ट बिल्कुल हिलाना नहीं है। अभी हमारी गर्दन सीधी कर दीजिए। संत श्वसन के साथ हमें नेक एक्सरसाइज करने हैं। अभी हमें गर्दन राइट साइड में करनी है। अभी गर्दन को सीधा कर देना है। दोनों हाथ नीचे कर देने हैं। अभी हम नेक एक्सरसाइज दूसरी करेंगे। नेक को हमें पूरा रोटेट करना है, पहले लेफ्ट साइड में, उसके बाद राइट साइड में। चलो दोनों हाथ कमर के ऊपर रखने हैं। गर्दन को धीरे से नीचे लेके जाना है। गर्दन को भी लेफ्ट साइड में घुमाना है। घुमाते हुए पीछे लेके जाना है। घुमाते हुए आपको राइट साइड में आना है। घुमाते हुए सामने लेके आना है। गर्दन को सीधा कर दीजिए।
दोनों हाथ कमर के पास। बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए तैयार होना है, एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस छोड़ दीजिए। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए तैयार होना है। सबसे पहले हम दोनों हाथ जो है ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे। जब हम ऊपर करते कोई भी चीज तो हमें सांस लेनी है, जब हम हाथ नीचे करते तो सांस छोड़नी है। ये तंत्र आप याद रखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है, ऊपर कर लीजिए, खींचो, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। अभी धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है, सामने से नीचे लेके आ जाइए। बहुत बढ़िया। अभी हम हाथों को हमारे शोल्डर के पैरेलल लाइन में लेके जाएंगे, साइड में दोनों हाथों को। चलो दोनों साइड में पैरेलल लाइन में शोल्डर के लेके जाना है। हाँ, धीरे से। थोड़ी देर हमें उसी पोजीशन में रहना है। दोनों तरफ से हाथ को स्ट्रेच कर देना जितना हो सके उतना, और धीरे से सोचना है कहाँ स्ट्रेच, कहाँ तनाव हमारे शरीर में आ रहा है, और कहीं कुछ ज्यादा सोचना नहीं। धीरे से अभी हाथ नीचे कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे शोल्डर का रोटेशन, हम करने जा रहे हैं। शोल्डर रोटेशन हम करेंगे। उसके लिए दोनों हाथ शोल्डर पे रख लीजिए, दोनों हाथों के कोनी यहाँ पे सामने रख दीजिए। 3 बार हमें ऊपर से पीछे की साइड से पूरा गोला बनाना है, 3 बार। चलो करते हैं। 1 2 3। अभी यहां से पीछे से हम जाएंगे, आगे हमें हाथ लेके आने 3 बार। 1 2 3। अभी हमें हाथ नीचे रख देने। ये सब पूरा हलचल है, जिससे कि सबसे योगा करने के पहले कुछ हलचल करते हैं हम लोग, जिससे हमें बॉडी में हमारा रक्त संचालन अच्छा हो जाता है, कार्यक्षमता हमारी बढ़ती है। अभी इसके बाद हम करेंगे कमर का ट्विस्ट रोटेशन, हम करने जा रहे हैं। उसके लिए दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल लाइन में ले लीजिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड जो है राइट कंधे पे रख लीजिए, ट्विस्ट हो जाइए, और साथ में राइट हैंड हमारा पूरे कमर पे लपेट लीजिए। ट्विस्ट रोटेशन, कमर पे पूरा हमारा तनाव आ रहा है, महसूस कीजिए कहां कहां तनाव आ रहा है। आंखें बंद कर लीजिए। अभी हमें सीधा होना है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सीधे हो जाओ। यही हम दूसरे साइड से अभी करेंगे। राइट हैंड हमारा लेफ्ट शोल्डर पे डालो, ट्विस्ट हो जाओ, और लेफ्ट हैंड कमर पे लपेट लो। कहां कहां तनाव आ रहा है हमारे शरीर में, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आसन अभी हम छोड़ेंगे। दोनों हाथ समांतर लेते हुए सीधे हो जाना है, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अभी हम करने जा रहे हैं नी मूवमेंट। नी मतलब हमारा घुटने के लिए। अभी उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा अंतर कम कर लीजिए। 1 से 1.5 फुट नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। अभी जिनको नी की प्रॉब्लम है वो लोग ये आसन नहीं करेंगे, जो फिट एंड फाइन है उनको करना है। अभी दोनों हाथ सामने की ओर लेके आना है, और साथ साथ में हमारे एड़ियां ऊपर उठानी है। अभी नीचे बैठना है, धीरे धीरे जितना हो सके उतना बैठो। अभी सीधे होना है, एड़ियां नीचे रख देनी है, दोनों हाथ नीचे। बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए तैयार होना है। फिर से पैर में थोड़ा अंतर लीजिए, 1 से 1.5 फुट तक का। दोनों हाथ सामने एक दूसरे में डाल दीजिए, पक्के पकड़ लीजिए दोनों हाथों को। अभी धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर लेके जाने हैं, ताड़ासन।
साथ साथ में एड़िया भी ऊपर उठाइए, नजर हमारी सामने, पूरे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है, रक्त संचालन बढ़ता है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। एड़ियों को नीचे रखो, दोनों हाथ सामने लाएंगे और दोनों हाथ नीचे। साथ साथ में कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए तैयार होना है। जिनको वृक्षासन ठीक से नहीं जमेगा वो किसी वॉल का भी आप आधार ले सकते हैं। लेफ्ट लेग जो है, राइट लेग पे आप ऊपर कर दीजिए। वहां पे दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए नमस्कार स्थिति में आपको ऊपर लेके जाने हैं। नजर सामने, तुलनात्मक आसन है। आंखें खुली रखनी है। कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला आसन है, हाइट बढ़ाने वाला ये आसन है और रोज करेंगे तो इसका टाइमिंग भी बढ़ जाता है धीरे धीरे। आसन अभी हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आने हैं, पैर को नीचे रखना है। अभी राइट लेग हमारे लेफ्ट लेग के ऊपर रखो, जितना ऊपर हो सके उतना पैर को ऊपर लेके जाओ। हर एक की अलग अलग क्षमता होती है। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए नमस्कार स्थिति में लेके आ जाओ। वृक्षासन, संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। दोनों हाथ धीरे धीरे कमर की ओर लेके आ जाइए, पैर नीचे रख दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी हम करने जा रहे हैं पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हाथ। हाथों से पैरों को छूना है, दैट इज पाद हस्तासन। उसके लिए तैयार होना है। थोड़ा सा 1 से 1.5 फुट तक अंतर पैरों में। अभी दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पूरे ऊपर लेके जाने धीरे से। अभी दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए कमर से हमें झुक के पूरे दोनों हाथों से हमारी पैरों के अंगूठे पकड़ने धीरे से। और हमारी कोशिश करनी है हमारा जो फोरहेड है घुटनों को लगना चाहिए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे। पाद हस्तासन सूर्य नमस्कार की 1-2 नंबर की अवस्था है। पूरे शरीर में रक्त संचालन अच्छा होता है। अभी हम आसन छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाना है। दोनों हाथों को गोलाकार घुमाते हुए कमर के पास लेके आना है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन। उसके लिए तैयार होना है। अभी चक्र हमें पीछे करना है। योग हम क्यों करते हैं? पूरे दिनचर्या में कुछ एक्शंस हम बिल्कुल भी नहीं करते और वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, इसीलिए अभी हम योगा करते हैं। उसमें से ये एक आसन है। उसके लिए दोनों हाथ, ये अंगूठा साइड में और दोनों चारों उंगलियां मिला लेनी है। उन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अभी ये ऐसे के ऐसे हाथ हमारे कमर पे रखने हैं। कमर पे हमारा अंगूठा जाना चाहिए। ऐसे ऐसे देख लीजिए आप, दोनों अंगूठे से एक दूसरे को सामने होने चाहिए। 4 उंगलियां हमारी सामने होनी चाहिए। अभी जितना हो सके उतना पीछे हो जाइए, पीछे मुड़ो, जितना हो सके उतना पीछे। हर एक की शरीर प्रकृति है, जितना हो सके उतना ही करो। इससे हमें पूरे गले पे तनाव आता है, हमारी बैक पे तनाव आता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। अभी हम सीधे होना है। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। अभी इसी के आगे हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन मतलब हमारे पैरों की कार्य क्षमता उससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। ताड़ासन के लिए तैयार होना है। ताड़ासन हमने कर लिया। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैरों में अंतर लीजिए। जितनी आपकी हाइट है उतनी पैरों में अंतर होना चाहिए। ये थोड़ा सा गणित है, उसके लिए तैयार होना है। अभी
लेफ्ट हैंड जो है हमारे लेफ्ट लेग के पैरों के साथ रख देना है, धीरे 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 धीरे, और साथ में राइट हैंड को ऊपर उठाना है, हमारी नजर राइट हैंड की उंगलियों की तरफ। त्रिकोणासन, पूरे शरीर का हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, देख लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छे से बढ़ती है, रक्त संचार अच्छा होता है, ब्रेन पावर भी हमारी बढ़ती है। धीरे धीरे आसन छोड़ेंगे। अभी हमारा राइट हैंड धीरे धीरे नीचे लेके आना है, लेफ्ट हैंड ऊपर लेके आइए। अभी यही आसन हम लेफ्ट साइड से करने जा रहे हैं, इसके लिए तैयार। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। बीच बीच में लंबी सांस लेने से हमें थकान नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बीच बीच में लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। अभी हमारा राइट हैंड राइट लेग के नीचे लगाना है, धीरे धीरे पैर सीधा घुटनों में, और लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड सीधा ऊपर होना चाहिए। हमारी आंखें लेफ्ट हैंड के उंगलियों की तरफ। तुलनात्मक आसन है, आंखें बंद नहीं करनी है। त्रिकोणासन, अभी आसन हम छोड़ेंगे। धीरे धीरे हमारा लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, दोनों पैरों में डिस्टेंस कम कर लीजिए। अभी हम बैठक स्थिति में जाने वाले हैं, उसके लिए दोनों पैरों के ऊपर आइए, लेफ्ट लेग सीधा कर लीजिए, राइट लेग सीधा कर लीजिए। अभी हम इसी अवस्था में शांत बैठने वाले हैं। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। अभी तक हमने जो जो योगिक एक्सरसाइजेस की है, आप मनचक्षु से जाके देख लीजिए आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपके रक्त का संचार बढ़ गया है। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त संचार हो रहा है, जो बहुत जरूरी है। हमें रोग क्यों आते हैं? क्योंकि रक्त का संचार कहीं ना कहीं रुक जाता है, थम जाता है, इसीलिए वहां रोग की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत सिंपल विज्ञान है हमारा योग, ये विज्ञान से रिलेटेड है, इसीलिए हमें अपने आप को ध्यान देना बहुत जरूरी है। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। शरीर का कोई भी पार्ट आप हिलाएंगे नहीं। पूरे मन को शांति मिलती है, शरीर को शांति मिलती है। धीरे धीरे आपकी सांसें रुक रही है, कम हो रही है, इसका मतलब आपका मन शांत हो रहा है। अभी हमने इतनी एक्सरसाइज की है तो हमारा शरीर शांत होना बहुत जरूरी है। फिर से हमारी ऊर्जा का संचय होता है शरीर में, हम कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लंबी सांस लीजिए। और एक विज्ञान ऐसा है कि हमारे फेफड़ों की क्षमता बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, हम लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारे फेफड़ों की क्षमता है 6000 सीसी सांस लेने की, लेकिन हम कितना सांस लेते हैं डेली? 300 या 350 सीसी, इतना ही सांस लेते हैं। तो बताइए, इतना कम सांस लेने की वजह से हमें बीमारियां होती है। सबसे पहले सांस लेना सीखो। 3 प्रकार का सांस होता है। एक हम शोल्डर बोन से ऊपर का सांस लेते हैं, अधम श्वास बोलते हैं। उसके बाद फेफड़ों से लेके हम सांस लेते हैं
मध्यम श्वास बोलते हैं उसको, और जो सांस हम हमारे नेवल से लेके पूरे नाक तक हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्ट, उसको बोलते हैं अति उच्च सांस लेना, उच्चतम सांस लेना बोलते हैं। सांस कभी भी हमें पेट से लेना चाहिए, पेट तक छोड़ना चाहिए। एक पूरा सांस भर लीजिए, पूरे पेट के आपके स्नायु जो है ऊपर आनी चाहिए। हमारे फेफड़ों से लेके हमारे पेट तक का जितना भी पार्ट खाली है वो पूरा ऊपर आना चाहिए। पूरी सांस भर लो, पूरी सांस धीरे धीरे नियंत्रित छोड़ना है। हमारी नेवल पूरे बैकबोन तक लगनी चाहिए, इतना सांस छोड़ो। और देखो थोड़ी देर आपको सांस लेने की इच्छा ही नहीं होगी। ये है करेक्ट तंत्र सांस लेने का। बहुत अच्छा, अभी हमारा मन शांत हो गया है, शरीर भी शांत हो गया है। अभी हम आगे के पोस्चर में कुछ आसनास करने जा रहे हैं। आंखें खोल लीजिए। अभी हम करने जा रहे हैं भद्रासना। भद्रासना ये एक हमें योगा में जहां पे एक बैठने के लिए हमारा एक आसन होना चाहिए, एक भद्रासन एक ऐसा एक आसन है। दोनों पैरों में अंतर लीजिए, लेफ्ट लेग अपने पास में लीजिए, जितना हो सके उतने कमर के पास लेके जाना है। अभी राइट लेग उठा के उसके पास में लीजिए, दोनों पैरों को तलवे दोनों पैरों के जुड़ जाने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए। अभी दोनों हाथों को सामने से जोड़ दीजिए, दोनों हाथ जुड़े हुए दोनों पैरों के तलवों के नीचे रखने हैं। अभी पूरी पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। आपके घुटने जितने हो सके हैं उतने आप जमीन को लगाने की कोशिश कीजिए। हमारे पूरे पैरों पे तनाव आया है, साथ साथ में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी पूरा तनाव आया है। कार्यक्षमता बढ़ रही है, एकाग्रता हमारी बढ़ रही है। एकाग्रता के लिए बहुत बढ़िया आसन है भद्रासन। संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। अभी हम आसन छोड़ेंगे, आंखें खोल दीजिए, दोनों हाथ सामने लेते हुए कमर के पास लेके आइए। लेफ्ट लेग सीधा कर लीजिए, राइट लेग सीधा कर लीजिए। अभी हम करने जा रहे हैं वज्रासन। अभी वज्रासन के लिए जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, जिनको जमता है वही लोग करेंगे। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, आप सादी मांडी डाल के भी बैठ सकते हैं। वज्रासन के लिए तैयार। लेफ्ट लेग पूरा पीछे लीजिए, राइट लेग पूरा पीछे लीजिए, दोनों पैर घुटने एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, दोनों पैर जो है चौड़े नीचे स्प्रेड कर दीजिए। अभी दोनों हाथ पूरे दूसरे को एक कटोरी की जैसे शेप बना के दोनों हाथ घुटने पे रख दीजिए। वज्रासन, पूरी पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर ध्यानात्मक आसन में बैठने का एक आसन है। पहले हमने भद्रासन देखा था, अभी वज्रासन। ऐसे बैठने से बहुत जल्दी हमारा ध्यान लग जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। अभी हम आसन छोड़ेंगे, धीरे से आंखें खोल दीजिए। ओके मैडम। एक मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी हम
आगे का आसन करने जा रहे हैं अर्ध वृष्टासन। उसके लिए दोनों पैरों में अंतर लीजिए। पैर वैसे वज्रासन पोजीशन में रहेंगे लेकिन दोनों पैरों में अंतर लेना है। ठीक है, दोनों पैर अंतर लेना है। अभी दोनों हाथ जो है इस पोजीशन में हमें कमर पे रखने हैं। अंगूठा कमर के ऊपर, चारों उंगलियां सामने, और जितना हो सके उतना हमें पीछे मुड़ना है। मुड़िए पीछे, जितना हो सके उतना पीछे मुड़ना है। संत श्वसन करना है, आंखें बंद कर लीजिए। संत श्वसन, संत श्वसन। आसन अभी हम छोड़ेंगे, आंखें खोलना है, पीठ सीधी करनी है, दोनों हाथ कमर के पास। अभी हमें करना है शशांकासन। ये दोनों पैर जो है हमारे वज्रासन में ही रहेंगे। वज्रासन में पूरा पैरों के ऊपर बैठ जाना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। अभी दोनों हाथ घुटनों के सामने रख दीजिए। अभी धीरे धीरे दोनों हाथ आगे लेते हुए हमारी पीठ से हमें झुकना है और हमारा फोरहेड जमीन को लगा देना है। शशांकासन, पूरा जमीन को लगा दीजिए। ये अवस्था हमारी खरगोश के जैसे बन जाती है। पूरा शरीर शांत हो रहा है। संत श्वसन, संत श्वसन। हमें ये आसन करने से खरगोश के जैसे कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है। पूरे दिन भर हम काम कर सकते हैं। पूरे शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है। आसन अभी हम छोड़ेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ हमारे घुटनों के सामने लाने हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे, ये घुटनों पे रख देने हैं। दोनों हाथ कमर के पास। अभी हम करने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन। उसके लिए दोनों पैरों में अंतर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन दोनों पैर पीछे से हमें एक दूसरे से लगा के रखने हैं। ऐसे ट्रायंगल होना चाहिए। पैर इधर, दोनों पैर पीछे से चौड़े हमारे जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, अभी हमें लेफ्ट हैंड सामने करते हुए राइट हैंड के शोल्डर पे रखना है। पीछे से राइट हैंड उठाते हैं, लेफ्ट शोल्डर पे रखना है। हमारी अवस्था उत्तान मंडूकासन, मंडूक के जैसे बन गई है। हमारी गर्दन सीधी, धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छा हो रहा है। पूरे शरीर पे ध्यान देना है। संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। राइट हैंड सीधा कर लीजिए, नीचे रख दीजिए। लेफ्ट हैंड सीधा करके नीचे रख दीजिए। दोनों पैर एक दूसरे से जोड़ लीजिए। लेफ्ट पैर सीधा कर लीजिए, राइट पैर सीधा कर लीजिए। अभी हम करेंगे इसी अवस्था में वक्रासन। वक्रासन के लिए तैयार होना है। लेफ्ट पैर जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे कमर के पास लेके आना है। लेफ्ट लेग पूरा जो उसका घुटना है हमारे छत की तरफ होना चाहिए पूरी तरह से। राइट लेग सीधा ही रखना है। अभी हमारा जो राइट हैंड है वो इस तरीके से ऐसे रखना है। जो हाथ है हमारा पंजा जो है हमारे पीछे की साइड में जाना चाहिए। अभी लेफ्ट हैंड का जो हमारा तलवा है उसके सामने रख देना है और शरीर हमारी बॉडी को ट्विस्ट करके पीछे की साइड देखना है। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे पीठ में ट्विस्ट हो रहा है, पैर में तनाव आ रहा है, हमारे पीठ की कार्यक्षमता बढ़ रही है, रक्त संचार अच्छा हो रहा है। आसन अभी हम छोड़ेंगे।
लेफ्ट हैंड सीधा कर लीजिए, राइट हैंड सीधा कर लीजिए। अभी हम आगे का आसन करने जा रहे हैं, मकरासन। उसके लिए तैयार होना है। लेफ्ट लेग पास में लीजिए, राइट लेग पास में लीजिए। अभी लेफ्ट लेग पीछे कर देना है, राइट लेग पीछे कर देना है। पूरे शरीर को हमें नीचे लेटा देना है, उल्टा। इसको बोलते हैं विपरीत शयन स्थिति। दोनों हाथ कमर के पास। अभी हमें दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गोलाकार घुमाना है। दोनों हाथों के कोनियों को पकड़ना है और रिलैक्स पोजीशन में सामने हमारे सर के ऊपर रख देना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर, एड़ियां अंदर, चौड़े बाहर, और हमारी गर्दन दोनों हाथों के ऊपर रख देनी है। मकरासन। मकर मतलब क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जब पूरे पानी में अपना काम करके आती है तो आराम करने के लिए पानी के ही बाजू में मिट्टी में उल्टी सो जाती है। इसीलिए इस आसन का नाम है मकरासन। ये भी एक आराम का आसन है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आराम देता है। हमारे सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक पूरी बॉडी ढीली छोड़ दीजिए। मन में जो विचार है उनके ऊपर विचार मत कीजिए। विचारों पे विचार करेंगे तो विचार बढ़ जाते हैं। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो वो वहीं से चले जाते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। पूरे दिन भर में हम अपने शरीर को देखते ही नहीं है, जो कि हमें पूरे लाइफ में पूरा शरीर हमें साथ देने के लिए, उसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है 45 मिनट्स अ डे और 1 आवर योगा पर डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो योगा में हो जाइए और रोग मुक्त लाइफ आप जिए। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। अभी हमारा शरीर शांत हो गया है, मन भी शांत हो गया है। आसन अभी हम छोड़ेंगे। आंखें खोलते हुए गर्दन सीधी करनी है, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर जोड़ लीजिए। अभी हमें उठकर बैठ जाना है। उसके लिए आप सीधे हो जाइए ताड़ त्रिपी अवस्था में। लेफ्ट लेग आगे कर लीजिए, राइट लेग आगे कर लीजिए। दोनों पैरों पे बैठ जाइए। अभी इसमें हम मकरासन नहीं भुजंगासन करेंगे। आप फिर से मकरासन मतलब फिर से आप विपरीत शयन स्थिति में हमें जाना है। दोनों पैर नीचे और विपरीत शयन स्थिति में जाना है। इसमें हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए तैयार होना है। दोनों हाथ गोलाकार घुमाते हुए हमारे चेस्ट के पास लेके आइए और साथ साथ में हमारा फोरहेड जमीन पे रख दीजिए। दोनों पैर जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए। अभी हमें सांस लेते हुए पूरी हमारा फोरहेड, चेस्ट और पेट, कमर तक का पूरा पार्ट ऊपर उठाना है। भुजंगासन। पूरे हाथ सीधे होने तक पूरी बॉडी पर उठाइए। आंखें बंद कर लीजिए। संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। अभी हम आसन छोड़ेंगे। धीरे धीरे हमारा पेट, चेस्ट और फोरहेड नीचे रख दीजिए। दोनों हाथ गोलाकार घुमाते हुए नीचे रख दीजिए। अभी हम हमारे पैर जो है ऊपर उठाने वाले हैं, चलभासन करने वाले। दोनों पैर उठाने एक साथ में,
जिनको पॉसिबल है वही करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़ दीजिए। दोनों पैर ऊपर उठाने हैं, जितना हो सके उतना दोनों एक साथ। उठने में पैर सीधे होने चाहिए। ये आसन हम हर रोज नहीं करते हैं, हमारे लाइफ में पैर ऊपर होते ही नहीं है, इसीलिए हमारी बीमारियां बढ़ जाती है। आसन छोड़ेंगे, धीरे धीरे पैर नीचे। एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस छोड़ दीजिए। अभी हम इसके आगे वाला आसन करने जा रहे हैं। उसके लिए तैयार होना है। दोनों हाथों के ऊपर आइए, लेफ्ट लेग आगे लीजिए, राइट लेग आगे लीजिए, पैरों पे आ जाइए, दोनों पैर सीधे करके बैठ जाइए। अभी हम शयन स्थिति हमारी, उसमें हम बैठ जा सोने वाले, मतलब सोने की स्थिति बोलते शयन स्थिति करने वाले। उसके लिए दोनों हाथों के कोनियों पे आइए, पूरे शयन स्थिति में चले जाइए। अभी हम उत्तान पादासन करने वाले, दोनों पैर जो है हमारे 90 डिग्री एंगल में करने वाले हैं। इसलिए तैयार होना है। दोनों पैर ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर लेने हैं 90 डिग्री में। आंखें खुली रखनी है, दोनों अंगूठे पे हमारे आंखों की नजर। संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। पैरों को खिंचाव देना है। आसन अभी हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे दोनों पैर नीचे रख देने। पूरे हमारे पेट के ऊपर तनाव आता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाती है। के बाद अभी हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। के लिए तैयार होना है। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैर उत्तान पादासन में लेके आना है धीरे से। अभी दोनों पैर घुटने में मोड़ के हमारे पेट के ऊपर दोनों पैर रख देने हैं। दोनों हाथों से कोनियों को पकड़ना है हमारे घुटनों के नीचे और पूरे पैरों को दबाना है पेट के अंदर। और लास्ट में हमारी गर्दन ऊपर उठानी है। जिनको पीठ की तकलीफ है उन्होंने गर्दन ऊपर मत उठाइए। हमारी हनुवटी हमारे घुटनों के अंदर लगनी चाहिए। पवन मुक्तासन, अपान वायु जो हमारे शरीर में बिगाड़ करता है उसको निकालने के लिए ये आसन है। धीरे धीरे हम आसन छोड़ेंगे। हमारी गर्दन नीचे रख दीजिए, दोनों हाथ नीचे रख दीजिए, पैर को उत्तान पादासन में लाइए। धीरे धीरे पैर नीचे लेके आना है। एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस छोड़ दीजिए। अभी दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर लेना है। एड़ियां अंदर, चौड़े बाहर। दोनों हाथों में 4 से 5 इंच का अंतर लेना है। तलवे ऊपर की छत की तरफ रखने हैं। दोनों हाथों की उंगलियां आधे से ज्यादा मिटा के रखनी है। हमारी गर्दन लेफ्ट साइड या राइट साइड में रख देनी है। शवासन, आंखें बंद कर लीजिए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आराम मिलने का ये आसन है। तो बॉडी को शांति मिलती है, मन भी हमारा शांत हो जाता है। एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस छोड़ दीजिए। शव मतलब मृत शरीर। मृत शरीर जैसे कुछ भी ना हलचल करते हुए शांत पड़े रहता है, वैसे ही हमें पड़े रहना है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है और कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है।
शरीर हमारा शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आने वाले विचारों के ऊपर विचार नहीं करेंगे। आजू बाजू आने वाली आवाजों को हम दुर्लक्षित करेंगे। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़ देनी है। वक्रासन के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। पूरे दिन भर की थकान 3 घंटे की नींद हम 15 मिनट में कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में होता है। वक्रासन हमारे सांसों की गति कम हो गई है, इसका मतलब हमारा शवासन बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे समझना है। हमारा शरीर तनाव मुक्त करना है, मन हमारा तनाव मुक्त करना है। अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारा शरीर तनाव मुक्त होना चाहिए। शवासन हम छोड़ेंगे, आंखें खोलते हुए गर्दन सीधी, दोनों हाथ हमारे शरीर के पास, दोनों पैर जोड़ दीजिए। दोनों हाथों की कोनियों पे आइए, सीधे बैठ जाइए। अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं, उसके लिए किसी भी एक ध्यान मुद्रा में हम बैठेंगे। आपको जो पॉसिबल है उस पे आप बैठ सकते हैं। स्वस्तिकासन या फिर सादी मांडी या चेयर पे भी आप बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। अभी हम कपालभाति का अभ्यास करने जा रहे हैं। कपालभाति, कपालभाति ये एक हमारा शरीर साफ करने का प्राणायाम है। हमारा शरीर मतलब हमारा जो सांस लेने का जितना भी पार्ट है, श्वसन यंत्रणा, वो पूरी साफ करने का एक प्राणायाम है। श्वसन यंत्रणा पूरी तरह से, उसके अंदर जो भी पूरे दिन भर हम बाहर जाने के बाद जो लग जाता है, जो भी धूल है, मिट्टी है, वो कपालभाति करने से पूरी तरह से निकल जाता है। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। आज हम तीनों प्रकार के प्राणायाम सीखने वाले हैं। एक होता है पूरे शरीर साफ करने का, जो है कपालभाति हम करने जा रहे हैं। दूसरा होता है ऊर्जा, हमारे अंदर जितनी ऊर्जा है उसको और बढ़ाने के लिए प्राणायाम किया जाता है, वो है नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम, वो भी हम इसके बाद करने वाले हैं। और तीसरा होता है हमारे शरीर का संतुलन पूरा रखने वाला प्राणायाम, और वो होता है ओंकार जाप, और उसके बाद भ्रामरी, वो भी हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं। तो दोनों हाथों को आप पहले मुझे देख लीजिए, मैं कैसे करती हूँ, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना है। दोनों हाथ हमारे सामने रखने हैं, घुटनों के लगा के रखने हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, और आंखें बंद कर लेना है। इस प्राणायाम में सांस भरने के, एक बार भरने के बाद उसको छोड़ने के लिए हमें प्रयत्न करने। सांस जब हम लेते हैं पूरक बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो रेचक बोलते हैं। तो इसमें प्रयत्न शून्य सांस और प्रयत्न पूर्वक रेचक करना है। प्रयत्न पूर्वक हमें सांस लेनी है, प्रयत्न शून्य सांस और प्रयत्न पूर्वक सांस छोड़ते ही रहना है, कंटिन्यूअस। वो अपने आप हो जाता है। शरीर का दूसरा कोई हिस्सा हमें हिलाना नहीं है, ओनली हमारी पेट का कुछ पार्ट और चेस्ट का कुछ पार्ट हिलेगा। कैसे करना है देख लीजिए। पूरी सांस भर लेनी है, ऐसा आपको 20 बार करना है, ओनली 20 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे, जिनको पीठ की प्रॉब्लम है वो लोग भी नहीं करेंगे। इससे हमें बहुत लाभ होते हैं। पूरे हमारे श्वसन मार्ग जो है हमारा शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। आप देखेंगे 2 बार 3 बार करने का होता है इसका। पूरे दिन भर में आप 20-20 स्ट्रोक्स 3 बार करेंगे तो पूरे दिन भर में सांस लेने के आराम से आप सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कोरोना जैसे बीमारी के लिए ये जो प्राणायाम अभी इसके आगे मैं बोलने वाली हूँ, और ये प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है। एखादा काम आप
मत करो, छोड़ दो, लेकिन प्राणायाम करो, ये मेरी विनती है। तो अभी हम सब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटने पे रख दीजिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए, मन शांत, शरीर शांत। फेफड़े भर के सांस लीजिए और छोड़ने का प्रयत्न 20 बार कीजिए। शुरू कर दीजिए। आपका हो गया होगा कपालभाति, तो धीरे से संत श्वसन करना है। संत श्वसन, संत श्वसन, संत श्वसन। श्वसन मार्ग हमारा साफ हो गया है। इसके आगे का प्राणायाम करने हम जा रहे हैं। अभी हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि मतलब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, लेकिन बहुत ऐसी कुछ नाड़ियां होती है वो सुप्त अवस्था में रहती है, क्योंकि उनको कुछ काम ही हम नहीं देते तो वो पड़ी रहती, सोई रहती है। लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से, या चक्रावर्ती प्राणायाम भी इसको बोलते हैं, अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, इससे हमारे 72,000 जो नाड़ियां है शरीर में वो उत्तेजित हो जाती है, कार्य करने शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में लवचिकता आती है, हमारी कार्य क्षमता पूरे दिन भर के लिए बढ़ जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है। शरीर में ऊर्जा का संचय होता है, मेंदु का, हमारे मस्तिष्क का जो रक्त संचलन है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे फायदे। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। कैसे करना है एक बार दिखा देती हूँ। इसके लिए लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा हमारे घुटनों पे रखनी है, और राइट हैंड की ये मुद्रा करनी है। दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंदर रख देने हैं। दोनों उंगलियां जो है साइड में एक साथ रखनी है। दोनों ओठों पे जो उंगलियां हमने दबाई है ओठों पे रख देंगे, राइट हैंड। और अभी हमें, आप खाली देख लीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। पहले देखना, प्राणायाम ये हमें गुरु के सामने ही करना होता है, पहले सीखना होता है, अपने आप नहीं करना है। उसके दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए। तो अभी हमें राइट हैंड से हमारे नाक के अंदर जो हड्डी है वहां पे धीरे से दबाना है अंगूठे से। लेफ्ट नाक से हमें सांस छोड़नी है। एक संकल्प करना है हमारे शरीर के लिए, और लेफ्ट नाक से जितना हम सांस ले सकते हैं उतना लेना है। अंक हमारे मन में हम सोचेंगे, और पहले ही सोचेंगे छोड़ना, जितना हम ले रहे उतने डबल हमें छोड़ना है। सपोज हम 2 अंक में सांस ले रहे हैं तो 4 अंक में हमें छोड़ना है। 3 अंक में हम सांस ले रहे हैं तो 6 अंक में छोड़ना है। छोड़ने के लिए हमें नियंत्रण लाना है, ठीक है। अभी मैं 4 अंक में सांस ले रही हूँ, 8 अंक में छोड़ूंगी। एक बार देख लीजिए। लेफ्ट साइड से मैं सांस ले रही हूँ, 1 2 3 4। अभी लेफ्ट साइड की नाक हमारी बंद करनी है धीरे से। 8 बार यहाँ पे सांस छोड़ने के लिए टाइम लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसी नाक से 4 में सांस लेनी है, राइट साइड से। 1 2 3 4। फिर लेफ्ट से 8 बार छोड़, 8 अंक में छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया एक चक्र। ऐसे हमें एटलीस्ट 5 चक्र करने हैं। तैयार होना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड की प्रणव मुद्रा ओठों पे रखनी है। राइट साइड की नाक में हमें धीरे से उंगली दबानी है। लेफ्ट नाक से पूरी सांस छोड़ देनी है। अभी 3 अंक या 2 अंक में सांस लीजिए। लेफ्ट नाक हमें बंद करनी है।
जितने में लिया है उससे डबल में आपको छोड़ना है, अंक मन में काउंट कीजिए। अभी फिर से लेफ्ट नाक से सांस लीजिए, अभी छोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगाना है। नियंत्रित श्वसन हमें करना है, इससे हमारी आयु बढ़ जाती है, रोग मुक्त आयु हमें मिलती है। और एक हम आवर्तन करेंगे। फिर से हमें राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जिनका लेफ्ट से छोड़ना हो गया होगा हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद ही रखिए, संत श्वसन कीजिए, संत श्वसन। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है उसके लिए तैयार होना है। हाँ, लास्ट है भ्रामरी प्राणायाम, सिखा देती हूँ, बहुत अच्छा है। कोरोना काल में भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर बहुत ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं और ये पाया गया है जो लोग भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं उनको कोरोना नहीं हो रहा है। तो आपके लिए सिखा देती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रखने हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, लंबी सांस लेनी है और हमारे गले से न का उच्चारण गूंगे की जैसे छोड़ना है। कैसे देख लीजिए, जो हमें गूंगा जैसे आवाज करता है वैसे हमें आवाज करनी है। इससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी का बढ़ जाता है और वो कोरोना के जैसे विषाणु को मार डालता है। तो 3 आवर्तन करेंगे, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट प्राणायाम है, चलो कीजिए, सांस भर लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम हमें बंद कर देना है। अभी हम अंतिम प्रार्थना जो है हमारी विश्व कल्याण प्रार्थना बोलने जा रहे हैं। विश्व में जो बीमारी आई है उसको कम होने के लिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन उसका जरूर मिलेगा। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद ही रखनी है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। मेरे पीछे आप प्रार्थना बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि हि कर्ता हरि हि कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति।
धीरे से दोनों हाथ खोल दीजिए। दोनों हाथ हमारे आंखों के ऊपर रखना है। आप हमारे उंगलियों के अंदर से जो प्रकाश की हमें अनुभूति हो रही है उसको अनुभूति करना है। दोनों हाथ नीचे, आंखें धीरे से खोल लेनी है। दोनों हाथ सामने कर लीजिए, पर्वतासन। दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए, पूरा तनाव हमारा निकल जाता है। यहीं से नमस्कार स्थिति करनी है। नमस्कार स्थिति से हमें जमीन पे लगा देनी है। जो भी योगाभ्यास हमने किया है विश्व नियंत्रण शक्ति को हमें अर्पण करना है। हमारे मन में जो अविद्या, वाइट विचार, दुख, गलित भावना पूरी तरह से छोड़ देनी है। पूरे दिन भर की आने वाली जो दिन है उसके लिए हमें आनंद और एक हंसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करनी है। पूरे सांस भर के हमें सीधे हो जाना है। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग सीधा। अभी लेफ्ट लेग पास में लीजिए, राइट लेग पास में लीजिए। दंड स्थिति में खड़े हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों एड़ियां ऊपर। पूरे शरीर का तनाव निकल जाता है। दोनों एड़ियां नीचे, दोनों हाथ नीचे। हरिओम, वर्ग विराम। आज का योगा यही खत्म होता है। आपने मुझे जो चांस दिया योगा करने के लिए, उसके लिए आपके पूरे सिंहगढ़ यूनिट का पूरे सबका बहुत 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 धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू मयूर राउत एंड योगिनी राउत। धन्यवाद। Thank you so much, Devre madam. Thank you for the beautiful performance of yoga asanas, pranayam, their importance in our life, and explaining your yoga concept, yoga performance, asanas to all of us very well. Thank you very much, ma'am. So now, on this note, I welcome our next speaker, our next guest or expert in yoga, Mr. Sahibrao Ramrao Rao. Sir is a retired bank manager, Maharashtra Gramin Bank. And today, Sir has joined all of us to give a special performance of the specific hard asanas which are there in traditional yoga. Actually, there are many hard asanas in yogasanas, but out of them, only 5 hard asanas Sir will be performing and explaining to us. So with this note, I welcome Sahibrao Raut Sir, and from complete STS family, I request Sir to accept our bouquets as a token of respect and love. So, Sir, please accept our bouquet. Thank you. Thank you, Yogini madam. Thank you so much, sir, for accepting the bouquets. And now I hand over the session to you. Over to you, Rao. हा, आपण आता 6 मोठ्या कठीण आसनांचा अभ्यास करणार आहोत. त्यापैकी आपण सर्वप्रथम घेत आहोत पद्मासन. पद्म म्हणजे कमळ. आपण सुखासन मधून या आसनामध्ये यायचं असतं. तर आपली जी शरीराची जी रचना आहे, शरीराची जी स्थिती आहे, ही आपली कमळाप्रमाणे दिसते. ह्या आसनामध्ये, या आसनाचे म्हणजे आपले जे पाय असतात हे पाकळ्यासारखे दिसतात आणि आपलं जे शरीर हे कमळाच्या आकाराचं दिसतं, म्हणून याला पद्मासन असं नाव दिलेलं आहे. तर ह्या आसनाचा आपण थोडक्यात फायदे बघूया. हे आसन ध्यान धारणेसाठी उत्तम समजले जाते. या आसनाने पाठदुखी दूर होते. आता यानंतर आपण दुसरे आसन बघूया, सर्वांगासन. सर्वांगासनामध्ये आपल्याला पाठीवर झोपायचं आहे. यानंतर आपले दोन्ही पाय आपल्या हाताने कंबर आणि पाय एका रेषेत आणायचे आहेत. या स्थितीमध्ये आपलं सर्वांग आपल्या शरीराचा आपला व्यायाम होणार आहे, म्हणून याला सर्वांगासन असं म्हटलं जातं. या आसनाचे फायदे असे आहेत: आपला पाठीचा कणा लवचिक बनतो, रक्ताभिसरण संस्था सुधारते, स्मरण शक्ती वाढते, गुडघे व पायदुखी येणे आपली कमी होते. हळूहळू आपण हे आसन असं सोडायचं आहे
सोडताना आपण हळूवार खाली यायचं आहे. आपले यानंतरच आपलं पुढचं आसन आहे हलासन. हल म्हणजे यानंतर आपलं पुढचं आसन आपल्याला करायचं आहे हलासन. शेतकरी जेव्हा आपण शेत नांगरतो त्यावेळेस हल वापरतो. हल म्हणजे नांगर. आपल्या शरीराची जी स्थिती असते ही आपल्या नांगराप्रमाणे दिसते, म्हणून याला हलासन असं म्हणलं जातं. तर हे आसन या स्थितीमध्ये आपल्याला करायचं आहे. आपण सर्वांगासन मध्ये मधून आपण सर्व हळूहळू आपण हलासन मध्ये जायचं आहे. आपले दोन्ही पाय जमिनीला टेकवायचे आहे आणि आपले हात जे आहे जमिनीला समांतर ठेवायचे आहे. आपली स्थिती ही नांगराप्रमाणे दिसणार आहे. याला हलासन असं म्हणलं जातं. तर या जे आसन आहे याचे जे फायदे आहेत, याचे मेरुदंड आपला लवचिक होतो, पोटाच्या स्नायूंना आपल्याला ताण पडतो. मधुमेहासाठी हे आसन अत्यंत उपयुक्त ठरले गेलेलं आहे. आपली रक्ताभिसरण संस्था सुधारते आणि चेहऱ्यावर आपलं तेज येतं. तर हे कठीणातलं कठीण आसन आहे. तर याच्यामुळे आपल्याला खूप असे फायदे होत असतात. हळूहळू आपण सर्वांगासन मध्ये येऊन आपलं आसन हे सोडायचं आहे. यानंतरचं पुढचं जे आसन आहे हे मयूरासन. मयूर म्हणजे मोर. म्हणजे आपल्या शरीराचा आकार हा आपल्याला मयुरासारखा दिसणार आहे, म्हणजे मोरासारखा दिसणार आहे. आपल्याला आपल्या पोटावर झोपायचं आहे. आपले पाय सरळ करायचे आहे. आपले दोन्ही हात बाजूला ठेवून आपले हळूहळू आपण या आसनामध्ये येणार आहोत. आपले दोन्ही हात आपल्या पोटाला आपल्या खुब्याच्या सहाय्याने आपल्याला रोवायचे आहेत आणि आपलं संपूर्ण शरीर मोर जसं आपल्या दोन्ही पायावर आपलं संपूर्ण शरीर बॅलन्स करतो, त्यानुसार आपलं संपूर्ण शरीर आपलं या दोन्ही हाताच्या खुब्यावर संतुलन करायचं आहे. या आसनाचे फायदे भरपूर आहेत. याने पोटाचे विकार दूर होतात, शरीराची रक्ताभिसरण संस्था सुरळीत होते, हाताचे स्नायू बळकट होतात, पाठीचा विकार आपला असेल तर तो सुरळीत होतो. अशा प्रकारचं हे आसन आहे. यानंतर आपण जाणार आहोत सेतुबंधासन किंवा चक्रासन. सेतू म्हणजे पूल. जसं आपण नदीवर पूल बांधतो, पुलाचा जसा आकार असतो त्यानुसार आपल्या आसनाची स्थिती होते. तर हळूहळू अशा स्थितीमध्ये आपल्याला यायचं आहे. पाठीवर झोपून आपण हे आसन करायचं आहे. हळूहळू आपले दोन्ही हात कमरेला नेऊन पुढे नेऊन आपले हात करायचे आहे आणि आपल्या शरीराला पूर्णपणे वाक द्यायचा आहे. आपलं हे शरीर अगदी पुलाप्रमाणे दिसणार आहे. याला सेतू या म्हणलाय की आपला शरीराचा आकार हा सेतू प्रमाणे दिसतो. तर याचे पुष्कळसे फायदे आहेत. याने मुख्यतः म्हणजे आपली कंबरदुखी कमी होते, गॅसेसचा त्रास हा कमी होतो आणि श्वसनामध्ये जर काही विकार असेल तो संपूर्णतः हा दूर होतो. असं हे फार कठीण आसन आहे. तर हे सरावाने आपल्याला जमेल. त्यामुळे आपण एकदम सुरुवातीला आपण हळूहळू तज्ञाच्या सहाय्याने आसन करायचं आहे. ज्याला पाठीच्या मणक्याचा असं असेल त्याने हे आसन करायचं नाही. यानंतर आपण शेवटचं आसन पाहणार आहोत शीर्षासन. शीर्ष म्हणजे या आसनाला आसनांचा राजा असं म्हटलं जातं. हे आसन जर केलं तर आपल्या सर्वांग शरीराला व्यायाम मिळतो. हे फार कठीण आसन असतं. हे सरावाने आपल्याला मिळेल. या स्थितीमध्ये आपल्याला जायचं आहे. हे बघा सर्वांगासन म्हणजे आपलं रक्ताभिसरण संस्था ही उलट्या दिशेने काम करायला लागलेली आहे. आपल्या व्हेन्स मध्ये किंवा आपल्या नाडीमध्ये जे काही ब्लॉकेज असतात हे ब्लॉकेज अगदी सुरळीतपणे आपले मोकळे होतात आणि आपल्याला जे रक्तदाब, मधुमेह किंवा मेंदूचे आकार किंवा पाठीच्या कण्याच्या जे काही आपले प्रॉब्लेम्स असतात हे हळूहळू आपले दूर होतात. आपलं शरीर संपूर्णरित्या आपलं मोकळं होतं. या आसनामध्ये सुद्धा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचा व्यायाम करू शकतो. ज्याला हे आसन सरावाने चांगलं जमलेलं आहे तर त्याला हे जमेल. हे बघा हे आसनामध्ये आपण पद्मासन मध्ये किंवा आपण साध्या आसनामध्ये सुद्धा येऊ शकतो. यानंतर या आसनामध्ये राहून आपल्याला दुसऱ्या प्रकारचा व्यायामही करता येतो. हे बघा आपला बंदुकीचा आकार झालेला आहे किंवा तोफेचा आकार आपण सुद्धा करू शकतो. यामुळे आपल्या पायालाही व्यायाम मिळणार आहे आणि आपल्या इतर शरीरालाही आपला व्यायाम मिळणार आहे. संपूर्ण शरीर आपलं डोकं आणि आपल्या हातावरती आपण तोललेलं आहे, आपण संतुलन केलेलं आहे. यानंतर तर दुसरी जी स्थिती आपण करू शकतो, जशी आपण बायसिकल चालवतो त्याप्रमाणे आपल्याला बायसिकल सुद्धा आपल्याला या आसनामध्ये आपल्याला करू शकतो आपण. हे बघा बायसिकलच्या व्यायाम आपण करत आहोत. यानंतर आपण
ताडासन ज्याला म्हणतो आपण, ताड म्हणजे अगदी माडासारखं झाड असतं, त्या सुद्धा आकार आपल्याला येतात, देता येईल आपल्याला. यानंतर आपलं वक्रासन, या प्रकारे आपण ह्या स्थितीमध्ये सुद्धा आपण येऊ शकतो. आणि आपला जो नेहमी पिटी जी असते, आपण जर साधं आपण उभं राहून जे करतो, ते आपण या उलट्या शीर्षासनामध्ये राहून सुद्धा आपण हे आसन करू शकतो, आपण ही स्थिती करू शकतो. किंवा जे आपण क्लॅपिंग करतो हाताने, तर आपण आता पायाने सुद्धा आपल्याला क्लॅपिंग करता येते बघा. या आसनामध्ये आपण क्लॅपिंगही करू शकतो. असं हे सर्वांग आसन आहे. सॉरी, आपलं हे शीर्षासन आहे. या शीर्षासनामध्ये अशा प्रकारचे विविध प्रकारच्या मुद्रा आपण दाखवू शकतो. तर हे एक सर्वात कठीण आसन आहे, ज्याला पाठीचे मणक्याचा आजार आहे किंवा ज्याला मणक्याचा आजार असून ज्याला मधुमेह आहे किंवा इतर कुठले आजार आहे, त्याने हे आसन करू नये. अशा प्रकारचे आपण 5 नसाचा थोडक्यात आपण अभ्यास केलेला आहे. तर मी आता हे माझं सेशन संपवतो आणि माईक योगिनी मॅडम कडे हँड ओव्हर करतो. थँक्यू योगिनी मॅडम. थँक्यू. ओव्हर टू योगिनी मॅडम. Thank you so much, actually, Saibra Raut sir. Your performance was extremely beautiful. तुमचा अतिशय सुंदर परफॉर्मन्स होता. आणि हे सगळे जे तुम्ही आसन सर आम्हाला युथ लोकांना दाखवले, हे डेफिनेटली एक मोटिवेशन आहे आमच्यासाठी. सर, your flexibility of the body is actually super, and definitely performance by Raut sir will definitely inspire all of us to go into the yoga and also perform the best for yoga, which is the best exercise for our mind, body, and soul. And the major thing about sir is he, at this age, which is his age is today, his age is 64. At age of 64, sir is still so much flexible. So hats off to you, Raut sir. Thank you. Thank you, Yogini madam. Thank you. Thank you all of Srinagar Engineering College staff and Principal Gaikwad sir and Chaudhary sir and Mayur Raut sir and Yogini madam as well as Pandit sir. Thank you. Thank you so much, Raut sir. Now I would like to ask our respected Vice Principal sir, who has joined lately, but thanks for joining, sir. And Chaudhary sir, if you are there in the meeting, please respond me so that I'll. Chaudhary sir, may I know you're there? Yes, yes. Okay, thank Yes, you, I am sir. there. Am I audible? Okay. Yeah, Yes, sir. you are audible, sir. Just a minute. Yeah. Please accept the virtual bouquets from STS family as a part Yes, of yes. respect and love. Yes, sir. Yes. Yeah, and over to Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Definitely, but today is the 21st of June is the Yoga Day. It is International Yoga Day. It is organized by our Srinagar Institute of Technology, Lonavala, for all our students and faculty. On behalf of Srinagar Institute of Technology and our Career Counseling Center, I'm really happy to see that this celebration is very, very good. And I'm very much thankful to Yogini Devre Madam and Saibra Raut sir for giving their participation and teaching the yoga, perfect yoga to our students and faculty. Definitely, as you know that on this yoga day, this organization is done only for the betterment of the our society and health of our people. And as you know, as the sir and madam has already mentioned, yoga is a very much important for our day-to-day life. And because these medicines will not solve the purpose. If you have the yoga daily, then automatically all their body will be happy and stable and fit. So with this all, on behalf of Singhad Institute of Technology, Lonavala and Career Counseling Center, I am very much thankful to Devare Madam and Saibra Raut sir. In addition to that, let me appreciate the efforts done by the organizer, Yogini Raut Madam, Dr. Pandit sir, and Mayur Raut sir for organizing such a wonderful, very good program. So I wish you all a healthy life and
in your future. Thank you very much for calling me and giving me the chance. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you so much, Chaudhary sir. Now, I would like to give a big thanks for all the management team of our institute. Thanks, a big thanks to them, the authorities who have permitted for celebrating this International Yoga Day in our college. Thank you to them. My next vote of thanks is for our campus director and principal, Siagarh Institute of Technology, Lonavala, Dr. M.S. Gaikwad sir. Chaudhary sir, as a vice principal, a great thanks to you. Career Counseling Center head, SPES Campus Lonavala, Professor Mayur Raut sir, a big thanks to him. Library head, Dr. P.J. Pandit sir, thanks sir for having a great coordination. Our today's resource person for yoga and yoga expertise, Mrs. Madhuri Vijay Devre, yoga expert from Nashik. Sahebrao Ramrao Rao, second yoga expert in hard asanas, who performed well and motivated all the youth people here. So thanks to you, sir, for your special performance. Then our technical support, VD Raskar sir, thank you so much. So with all this, I will thank to all of you, the faculty members, the respected all the students who have stayed over here and listened to the program patiently. So I thank all of you. Thank you very much, madam. Now we will be sending a link of feedback as well as certification to all the students. So please fill the form and you will be getting certificates on your mail ID. Thank you very much for joining. Thank you. The session is being over. Thank you. Thank you, sir. Thank you. चलो all of you once again. हो गया? Is it finished?